Hello. Yeah, Jay, how are you? Good afternoon, sir. I'm good. Thank you. How are you? Great, great. So, Jay, for which organization you just had your interview? So I had my interview from NLC. NLC, yeah, New Delhi. Exactly. Yes. Okay. So, you are from which branch, Jay? I'm from mechanical. Mechanical. So, Yes, sir. okay, Jay, I want your brief introduction first. When did you graduate, and what is your GATE score, Okay. CGPA, and Yes. category, and how you hit NLC? I think NLC is through GATE only, right? NLC. No, NLC conducted its own exam. Its own exam. Okay. Yes, sir. ठीक है. तो Okay. आप थोड़ा सा So brief introduction and then your questions. Yeah. so my name is Jay Kataria, and I hail from Sonipat district in Haryana. I did my schooling from Shamudal Modern School from Sonipat, and after that I've done my graduation in mechanical engineer from Deenbandhu Choturam University of Science and Technology, Murthar, which is situated in Sonipat itself. After that, uh, I've done my graduation in 2019, and my GATE score was 525. I belong to an SC category, and what else, sir? CGPA. Your CGPA was CGPA. I scored around 6.72. My CGPA was 6.72. okay. And Jay, let me ask you. When did you graduate? You said I graduated in 2019. 2019. So you wrote GATE exam also 19, Yes, 20 sir. and all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I wrote GATE exam in 2020, and my Okay. GATE score was 48.48. Okay. And after that, like this year, I scored managed to score only 52 marks. 52 marks. Okay. So Yes. did you try with that score last year or not? In IITs or Huh. NITs. Yes, IITs and I applied for a couple of IITs, like IIT Guwahati, hmm, Kanpur, BHU, and Delhi. hmm, And I only got call from few of the IITs, like BHU hmm. and Guwahati. Okay. So what was the GATE score that time with that marks? Uh, 425. No, 425 I'm and sorry, 525. Sorry, sir. 525. 520. Yes, sir. So 525, Jay, could you get? Can you tell me from where you got the Yes, sir. call? Like which So IIT last and year, which yes, sir. last year? Last year from 525, I got a call from like BHU, as I've just mentioned, Guwahati Hmm. and Roorkee, and I got thermal in BHU Hmm. and design in Guwahati. So you But I took was it like, or you left it? no, no. So I actually I denied it because I just wanted to give it a one more try. Okay, okay. So this year, what is your gate score hitting? 545. 540. So did you try NITI kind of places? No. Yes, sir. Yesterday I've got a call from NITI. Hmm. Because 545 you will get the call for IE or SM. For industrial engineer. Industrial engineering. I Anyhow, Yes. then please contact the executive also because they are learning modules. At least you access those learning modules and start preparing on that thing. Okay, We sir. have only 10 days. That is a good thing. Now let's Okay. come to our normal interaction. That is for NLC interview. Now tell me Yes. something about NLC. How was the paper and what was asked in written exam, and then you got a Okay. call and then how it was. Yeah. Okay. So I start from the beginning, right? Mm-hmm. Okay. So I prepared my tell me something about like self introduction pretty well. So there was a point like I've already told them about where I got graduated and my family and everything. So there was some points that I like specifically you know told them. So it was like sir, my short-term goal is to get a job in the public sector, especially in energy sector. And now that I've got this great opportunity from this reputed organization, I want to make the most out of it. So this was something that they like. Okay, this guy has something said something different from other candidates. So after that, after my introduction got over, so they instantly asked me. So as you mentioned that uh, you want to work in an energy sector. I was like, yes, sir. So they asked, tell me about the scenario about the energy sector in India. So I was already prepared. So like they were gonna ask me this, and I'm gonna reply. So I was like, sir, the growth of the power sector is the key to the development of our country. So I had said things like this, and then I told them that sir, India have already uh, set a target of achieving 175 gigawatt of renewable energy till 2022.
2023 एक्चुअली। सर तो सर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना वो बात मेरी पकड़ ली 2023। तो दे वर लाइक 20, आपने बोला 23, एक्चुअली वो ऑब्वियसली वो सब इंग्लिश में चल रहा था। तो उन्होंने बोला था कि आपने बोला 2023, मैंने कहा यस सर। तो बोलते कि आपको लगता है कि हम 2023 तक अचीव कर लेंगे? तो मैंने कहा सर मैंने जिस सोर्स से पढ़ा है वो क्या कहते हैं वहाँ पे 2023 मेंशन था। तो मैं सर वहाँ पे थोड़ा फंबल कर गया, मेरे को लगा कि मैंने गलत बोल दिया। तो मैंने कहा सर मे बी आई एम सॉरी। बोलती नहीं नहीं कि वो 2023 नहीं है, वो 2025 है। तो फिर मैंने सॉरी बोल के मैंने कहा सर सर मे बी आई एम रॉन्ग, जिस सोर्स से मैंने पढ़ा होगा शायद वो गलत होगा। लेकिन सर अभी मैंने लास्ट अभी आज ही टीवी पे देखा, वो एक्चुअली 2023 भी नहीं है, वो 2022 है। अच्छा, तो ओके। हाँ जी, बड़ा कंफ्यूजन था वो। अच्छा। तो उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद सर उन्होंने पूछा कि अच्छा मेरे को बताओ कि थर्मल पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट के बीच डिफरेंस बताओ। तो मैंने वही एक तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट और एफिशिएंसी के बारे में 2 पॉइंट बोले। तो उनको लगा कि एनफ है, तो उन्होंने फिर उसके बाद स्विच कर दिया क्वेश्चन। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आप आपको पता है कि हमारी कंपनी जो है वो रिन्यूएबल में बहुत ज्यादा काम कर रही है। मैंने उनको पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में भी ये भी मेंशन किया था कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना चाहता हूँ, वही इंडिया का जो ग्रोथ है आई वुड डेफिनेटली लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो कंपनी है आप उसके बारे में बताओ कि हमारी कंपनी ने कहाँ का इसमें प्रोजेक्ट जो भी है रिन्यूएबल में वो क्या क्या है। तो सर मैंने वो सब मैं अच्छे से तैयार करके गया था, वो मैंने सब बता दिया, रिन्यूएबल उनके जो भी पावर प्लांट्स थे और जितनी भी रिन्यूएबल की जो भी कैपेसिटी थी। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि हम इसके अलावा माइनिंग में भी काम करते हैं, लिग्नाइट और कोल में। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो बोलते कि आप लिग्नाइट और कोल में अंतर बता दीजिए। तो सर मैंने एक्चुअली कहाँ कहीं पढ़ा था कि लिग्नाइट हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अबंडेंस में तो है ही, और वो थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना ना थोड़ा चीप है। अब वो पता नहीं वो गलत था या ठीक था, तो मैंने ये सबसे पहले यही बोला, मैंने कहा सर वो अबंडेंस में है लिग्नाइट और वो चीप है। तो वो उन्होंने वो बात पकड़ ली मेरी। तो बोलते कि चीप है, मैंने कहा यस सर। बोलते आप मतलब आर यू श्योर, मैंने कहा यस सर। बोलते कैसे चीप है, मैंने कहा सर वो अबंडेंस में है, तो वो मतलब थोड़ा यूनिवर्सल है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में वो थोड़ा सस्ता ही होता है। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं होता, और होता है कि अगर कोई चीज अबंडेंस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीप है। तो फिर मैं सर वहां पे थोड़ा फंबल कर दिया, मेरे को लगा मैंने गलत बोल दिया। तो फिर उन्होंने वो क्वेश्चन स्विच कर दिया। फिर रिन्यूएबल के बारे में एक दो चीज और पूछी उन्होंने, वो भी मैंने बता दी। फिर लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। अब सर मैं मतलब ना एक अच्छे से वीडियो देख के गया था कि मतलब प्रॉपर कैसे, आधे घंटे की वीडियो थी कि कैसे थर्मल पावर प्लांट काम करता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा दिमाग में चला, मैंने कहा अब आधे घंटे का कैसे बताऊं, मैंने तो स्टार्टिंग से लेके वो इंस्टेड ऑफ मतलब दे शुड हैव आस्क्ड लाइक रैंकाइन साइकिल बता दो तो मैं बड़े इजीली बता देता। तो वहां पे ना मेरी थोड़ी इंग्लिश भी एकदम फंबल सी हो गई। ठीक है। तो मैंने कहा बोला, मैंने कहा सर कोयला आता है पहले ट्रेन से ऐसे ऐसे। तो बोलते कि ट्रेन से ही आता है। मैंने कहा सर चीप है जो ट्रांसपोर्ट उस किसी से भी आ सकता है। बोलते ठीक है। मैंने कहा सर वो उसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको बॉयलर में भेजा जाता है, फिर स्टीम, फिर वो टरबाइन पे पहुंच गया मैं। तो बोलते कि मेरे को ना स्टीम की प्रॉपर्टी बता दो। अब सर स्टीम की प्रॉपर्टी मतलब जो जैसे हम रैंकाइन साइकिल में क्वेश्चन करते हैं ना कि क्वालिटी निकालते हैं टरबाइन की एग्जिट पे। तो मेरे को लगा उन्होंने ये बोला है कि एग्जिट पे उनकी प्रॉपर्टी बता दो। तो मैंने बताना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा सर आइडियली द क्वालिटी ऑफ द स्टीम शुड बी 1, बट यूजली इट इज लाइक 0.8 to 0.9। तो उन्होंने फिर दोबारा वो बात पकड़ी कि 0.9 to 0.11, ये क्या बोल रहे हो। मैंने कहा सर जब एग्जिट होता है तो यही होता है। लेकिन वो एक्चुअली पूछ रहे कि जो टरबाइन के इनलेट में स्टीम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिर 10-15 सेकंड तक वही बात चलती रही। तो वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे को टोका, अरे ये बताओ कि जो इनलेट में वो क्या प्रॉपर्टी है प्रेशर टेम्परेचर की। तब मेरे को दिमाग में आया अच्छा ये तो इनलेट के बारे में पूछ रहे हैं प्रेशर। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा सर प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो बोलते उन्होंने टोका मेरे को, तो हाँ तो ये बोलो ना, मतलब क्या तुम स्टीम की एग्जिट की बात बता रहे हो। फिर मैंने सॉरी बोले, मैंने कहा सर थोड़ा मिसहर्ड हो गया वो। तो फिर उन्होंने दोबारा क्या कहते हैं जो कुछ और पावर प्लांट्स जो उनकी कैपेसिटी थी वो भी बता दिया मैंने। और हाँ एक चीज और पूछी थी सर उन्होंने, कि बोलते कि जब मैंने उनको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का जो टारगेट है जो भी, तो उसके बाद बोलते कि अच्छा एक बात बताओ कि थर्मल जो पावर प्लांट जो एनर्जी है हमारे इंडिया में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी में। वो एक्चुअली वो एक ऐसी चीज थी सर जो मेरे को, मैं पढ़ के नहीं गया था, मेरे दिमाग में ये थी कि मेरे को तैयार करना चाहिए।
तो बोलते कि नहीं नहीं, मैंने कहा सर मेरे को आइडिया नहीं है। बोलते नहीं कोई एग्जैक्ट फिगर मत दो, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे एग्जैक्ट फिगर से बताए थे। बोलते रफ डाटा ही बता दो। मैंने कहा सर, फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर आई हैव डन मोर रिसर्च ऑन एनएलसी, तो मेरे को एनएलसी की जितनी भी कैपेसिटी है उनके बारे में ज्यादा अच्छे तरह पता है। तो बोलते ठीक है कोई नहीं। तो फिर लास्ट में फिर उन्होंने वही बोलते और पूछ लिया अपनी कंपनी के बारे में, तो मैंने सारा वही बता दिया। मैंने कहा सर रिन्यूएबल में आपने नए पावर प्लांट यहाँ लगाए हैं, ये वो। तो ये चला था। फिर उसके बाद बोलते कि सर कोई दूसरों को देख के बोला किसी आपने पूछना चाहते हो, तो बोलते नहीं नहीं ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को जाने दिया। अच्छा जय, कितने लोग बैठे थे वहां पे? सर वहाँ पे करीब 6 लोग बैठे थे। तो आपका कितनी देर चला होगा ये सारा इंटरव्यू? सर देखो, एक्चुअली जब मैं बाहर वेट कर रहा था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका जाते ही वो बाहर आ गए थे। ठीक है। और सर जैसे मेरे को मतलब यूजुअली ऐसे था कि 5 मिनट ही चल रहा था यूजुअली। बट मेरे को लगता है कि मेरा जो इंट्रोडक्शन था, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो थोड़ा बड़ा भी था। तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा 7-8 मिनट तो चला ही नहीं, मेरे को तो लगता है ज्यादा चला होगा जितना आपने बताया। होगा। उससे सर मेरे को हो लग भी रहा सकता है। है। नहीं बिल्कुल उससे तो ज्यादा ही होगा। आपको उन्होंने इंट्रोडक्शन करने को बोला, फिर आपने बताया कि मैंने एक आई आस्क्ड समथिंग वेरी पेक्यूलियर हम्म। in which I could pull the interview in particular direction. What was that Yes, question, sir. So Ajay? there was the part like I specifically told them then that I want to work in the public sector and especially in energy sector. Acha, energy sector you focused. Yes, sir. Yes, sir. So And क्योंकि then मेरे को they asked you the next question from yes, energy so sector. yes, sir. उन्होंने फिर इंडिया से बोलते कि इंडिया का सिनेरियो बता दो। वो मैं अच्छे से तैयार करके गया था, वो मैंने बता दिया था। Acha, Jay, my next question to you is like many students ask, okay, sir, can we go for interview in Hindi because we are not comfortable in सर English? So एक्चुअली what is वहाँ your पे answer? ना सर एक्चुअली वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं। Hmm. क्योंकि मैंने भी सुना है जो कोरा पे, और मैंने जो भी मतलब पिछले इंटरव्यू है जो बच्चों ने दिए हैं, वो एक्चुअली बोलते हैं कि वहाँ पे ना एक तो वो साउथ इंडिया हो गया। Hmm. अब मेरे को नहीं पता उनको हिंदी आती है भी नहीं, लेकिन वो सर हमेशा प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में ही हो। Hmm. Hmm. So that was the reason. Acha, did they ask you anything from your project? नो सर। सो मतलब मेन रीजन यही था कि सर जैसे बाकी बच्चों से उन्होंने, जैसे मेरे दोस्त भी दे के आया था सर, उन्होंने उनसे सब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। Hmm. और ये सब क्या कहते हैं समर ट्रेनिंग के बारे में पूछा था। बट मेरा मतलब वही है सर, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज बोली कि मतलब थोड़ी अलग चीज बोली कि मेरे को एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहता हूँ मैं स्पेशली, मतलब मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक मौका मिला है, तो मैं मतलब आई वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और तो उनको वो लगे कहा हाँ कि ये चीज जिसने थोड़ी अलग बोलती है तो इसी से ही पूछते हैं। तो Acha, उन्होंने सर मेरे any यस question related to HR? Did they ask you? HR, like sir, they didn't ask me like why do you want to join this company? Like I've already mentioned, Hmm. like sir मेरे को आपकी कंपनी में क्यों काम करना चाहता हूँ, क्योंकि I would definitely love to be a part of it, क्योंकि वो एक एनर्जी सेक्टर में मतलब कंट्रीब्यूशन कर रही है आपकी कंपनी बहुत ज्यादा, और मैं उसका एक पार्ट बनना चाहता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था सर उसमें। Hmm. And HR में ज्यादा कुछ। then they asked you something about coal, huh? कोल, यस सर। अच्छा, कोल एंड लिग्नाइट डिफरेंस, how यस। important it is to see the website of the company जिसके इंटरव्यू के यस लिए आप सर। जाते हैं? तो वो बहुत ज्यादा एक्चुअली मैं बताता हूँ सर, मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ उसमें। क्या है कि सर मैंने कोरा पे पढ़ा था काफी कि वो जो लास्ट ईयर जो जब इन्होंने रिक्रूटमेंट करी थी, तो वो ये देखते हैं कि ये जो बंदा है ये कंपनी में रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो वो सर वो यही देखते हैं कि अब देखो कोई बच्चा होता है कि जो अच्छे से कंपनी के बारे में जान के आता है, ये तो सर एक वो यूनिवर्सल है कि भाई जहाँ पे आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में तो आपको अच्छा पढ़ना ही है। और सर मैंने मतलब जान के ये क्या कहते हैं, मैंने और जो हम क्या कहते हैं जो हमारे टीचर्स हैं, मैंने उनसे भी थोड़ा इंटरेक्ट करा था। तो उन्होंने वो यही बोला था कि सर कि आप मतलब इंटरव्यू ना आपके हाथ में होता है कि वो कहाँ पे जाएगा, उनके हाथ में नहीं होता। तो सर वो बात मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की थी। मैंने जब बोला उनको एनर्जी सेक्टर में, तो मेरे को पता था वो अब सर जैसे टेक्निकल ना वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि मैं बताता हूँ सर, मेरे बाद एक जो एक कैंडिडेट आया था सर, उसको पूछा कि जो वो होता है मशीन डिजाइन में सर एक कोड होता है ना, कोटर जॉइंट सर, उससे पूछ लिया कि कोटर जॉइंट का जो टेपर्ड एंगल होता है वो कितना होता है। अब सर को मेरे को लगता है नहीं बहुत ही कम कोई बता पाएगा। तो सर उसने मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे उस मतलब उस लड़के से, मतलब टफ ऑब्वियसली जो मटेरियल साइंस बड़ा टफ ही होता है बच्चों के लिए। तो सर मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि मतलब इंटरव्यू ना हमारे हाथ में होता है कि जहाँ पे हम लेके जाना जाना चाहते हैं। अब जैसे मेरा एनर्जी का था, तो मैंने उनकी अच्छी कंपनी अच्छी पढ़ के गया था मैं। अगर वो और भी मेरे को टाइम देते तो मैं और भी बता देता, एक्चुअली उन्होंने मेरे को बीच में रोक दिया। वो थोड़ा स्माइल से देखे, विकेट स्माइल देखे कि ये तो अच्छे से रट के आया है, तो उन्होंने मेरे को बीच में रोक दिया। ठीक है, मेरे को हमको पता है तू पढ़ के आया अच्छे से। तो अब मेरे को पता नहीं सर वो चीज मेरे फेवर में गई है या नहीं।
लेकिन मैं मानता हूँ कि सर ऐसी चीज बताना ज्यादा अच्छा है इंस्टेड, क्योंकि सर अब वही बात है ना कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एनएलपी। सही। अब सर मतलब रिटर्न करके आए क्लियर, तो ऑब्वियसली हम्म। उनको तो इतना तो पता ही हो गया एनएलपी। अब उसने इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं अच्छी चीज नहीं बताई होगी, तभी मतलब बोरिंग बोरिंग होगा उसका। बोरिंग। तभी उन्होंने सोचा होगा चलो कोई कुछ तो पूछ लो, तो उन्होंने सर एक लड़के से पूछा था कि जो छिपकली है वो छिपकली कैसे चढ़ती है दीवार पे। मैंने कहा ऐसे तो ऑब्वियसली कोई तैयार होता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। मेरा एक दोस्त था, उससे पूछा था कि ऐसे पेड़ इंक्लाइंड है, एक यहाँ से काट रहा है एक यहाँ से काट रहा है, कौन सी साइड पहले कटेगा। तो सर ये होता है डिफरेंस, तो इसका मतलब मतलब कि इंटरव्यू हरा आप, के आते हैं। मतलब आपको देख के जाना चाहिए अपना इनका वेबसाइट बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल इंटरव्यू सर, का। बिल्कुल बिल्कुल मतलब उनको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि भाई सर मैं आपकी कंपनी में, क्योंकि सर मेरे पास एक यही कॉल था एनएलसी के, इसके अलावा और कोई कॉल नहीं था। तो उनको बिल्कुल दिखाना चाहिए था कि भाई मेरे को आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है और मैं काम करूंगा यहाँ पे। अच्छा जय, एक बात पे और बताओ कि ये एनएलसी के लिए कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या लगता सर है आपको एनएलसी के इंटरव्यू लिए एक तो सबसे थर्मल थर्मल की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जैसे पावर प्लांट हो गया, ठीक में? है, और एचएमटी हो गया। और पावर प्लांट और एचएमटी थर्मोडायनेमिक्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन पावर प्लांट और एचएमटी तो हैं कि वो पूछते ही हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे को पता था कि सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल के बॉयलर के बारे में पूछा था उन्होंने कुछ बच्चों से। तो ये पावर प्लांट का कोई वो है, एक पार्ट है। एचएमटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसके वजह ये पढ़ के जाना चाहिए। से। जी जी जी। चलो बाकी सर एनीथिंग। देखो, सर बाकी तो वो पूछ तो कुछ भी सकते हैं, जैसे जो मेरे बाद जो लड़का आया था वो, जैसे वो कहीं झारखंड का था वो एक्चुअली। वहाँ पे सेल का कोई प्लांट है, मेन जो प्लांट है, मेरे को पता नहीं, उसने कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था। तो उसने जब बताया कि सर मैं वहां से हूँ, तो उन्होंने वहीं से क्वेश्चन उठाया, मतलब कि मटेरियल साइंस से, ऑब्वियसली वो स्टील वगैरह सारी फील्ड आ गई, तो उन्होंने उससे सारे क्वेश्चन मटेरियल साइंस से ही पूछे। तो मेरे को लगता है कि ऐसा ऐसे सिनेरियो में थोड़ा बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि मटेरियल साइंस बच्चों का वीक ही होता है। चलो जय, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया एंड आई होप कि अब आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे और आप अभी जो आपका स्कोर इस बार आया है उसका आप यूज करें। नीटी अब आपका नेक्स्ट टारगेट है, 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें, कन्वर्ट करने की तैयारी करें उसकी, और जो योर पीडी हेल्प कर सकता होगा वो भी विल डू दैट। फाइन। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आपने मेरे अलावा और बच्चों से भी इंटरेक्शन किया होगा एनएलसी के, तो सर आपको मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब उनका इंटरव्यू कैसा था एज कम्पेयर टू अगर मैं उससे देखो करना क्या है कि मैक्सिमम बच्चा टेक्निकल की तरफ फोकस करना चाहता है और नॉन टेक्निकल को अवॉइड करता है, चाहूँ। यस लेकिन तुमने रिवर्स किया, दैट इज यस एडवांटेज। तो जो तुम इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में ले गए, पुल कर दिया ना तुमने, यस वो यस उससे बाकी लोगों को इंटरव्यू इंटरेस्टिंग लगता है, अदरवाइज उनको बोरिंग लगता है, क्योंकि वो सर। एंथैल्पी एंट्रोपी क्या करेंगे उसका पूछ के, आप सर जानते ही एक्चुअली मेरे को अभी भी याद है उनके एक्सप्रेशन जो थे, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उनको हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस एक ही जो उनका मेन हेड होता है बस वही देख रहा था। तो मेरे को बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही थी, मैंने कहा मैं मतलब, क्योंकि होता है ना हर किसी से इंटरेक्ट करना है, पर कोई देख ही नहीं रहा था मेरी तरफ। तो जब मैंने स्टार्ट करा कि मैंने कहा मेरा शॉर्ट टर्म गोल और एनर्जी सेक्टर, तब उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी गर्दन उठाई, तब उन्होंने फोकस करा, हाँ ये कुछ बोल रहा है अलग। हाँ मतलब तो उनको ये इंटरेस्टिंग लगा ना वो चीज, फिर यस वही मैं यस बोल सर रहा हूँ यस कि वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए इंटरव्यू आपका, यस तभी वो सर। आपको मार्क्स देंगे, और आपका वो इंटरेस्टिंग सर क्या लगा। कहते हैं, अब मेरे जैसे मार्क्स भी रिटर्न में कुछ ज्यादा नहीं थे, क्योंकि हम्म, जैसे ऐसे की कट ऑफ 83 थी, 84 शायद, और मेरे 87 मार्क्स थे। हम्म। तो अब वही है सर, देखते हैं कि मतलब मेरा इंटरव्यू में कितना एडवांटेज देते हैं या नहीं देते। चलो बी होपफुल, बी पॉजिटिव, और ऑप्शंस भी जय एक्सप्लोर करते रहो, राइट। यस